قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان، جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کر رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو۔ عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اس سے کہا۔ تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے؟ مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا۔ ابو سفیان نے جواب دیا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں، تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرقل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہند نے غضبناک لہجے میں کہا، مت بھولو ابو سفیان، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں، اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاش نہیں اور وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے جواب دیا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاعہ اور بنو بکر 2 قبیلے آباد تھے، ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا، تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاعہ اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کے آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاعہ کے ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزاعہ چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاعہ پر بنو بکر سے حملہ کروایا تھا کہ خزاعہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاعہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاعہ کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ خزاعہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کر کے لے آئے ہیں۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی خزاعہ کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا، اس لیے خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاعہ کا سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینے چلا گیا۔ خزاعہ غیر مسلم قبیلہ تھا۔ اس کے یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
पास पहुंचे और आपको बताया कि बनु बकर ने कुरैश की पुष्ट पनाही से हमला किया और कुरैश के कुछ जंगजू भी इस हमले में शरीक थे। खिजा के एलची ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अक्रिमा और सफवान भी इस हमले में शामिल थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दे दिया। मौरिख लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल बड़ा ही शदीद था। अगर मामला सिर्फ बनु बकर और खिजा की आपस में लड़ाई का होता तो हुजूर शायद कुछ और फैसला करते, लेकिन बनु बकर के हमले में कुरैश के नामी गरामी सालार अक्रिमा और सफवान भी शामिल थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अहले कुरैश पर आयद होती है। अबू सुफियान ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की है। मदीना की गलियों और घरों में आवाजें सुनाई देने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हम मक्का की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब कुरैश को हम अपने कदमों में बिठाकर दम लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमले के तैयारी का हुक्म दे दिया। अबू सुफियान को इतना ही पता चला था कि बनु बकर ने खिजा पर शब खून की तर्ज का हमला किया है और खिजा के कुछ आदमी मारे गए हैं। उसे याद आया कि अक्रिमा और सफवान सुबह सवेरे घोड़ों पर सवार कहीं से आ रहे थे। उसने उनसे पूछा था कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने झूठ बोला था कि वो घुड़दौड़ के लिए गए थे। दोपहर के वक्त जब उसे पता चला कि बनु बकर ने खिजा पर हमला किया है तो उसने अक्रिमा और सफवान को बुलाया। तुम दोनों मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि खिजा की बस्ती पर बनु बकर के हमले में तुम शरीक नहीं थे? अबू सुफियान ने उनसे पूछा, क्या तुम भूल गए हो कि बनु बकर हमारे दोस्त हैं? सफवान ने कहा, अगर दोस्त मदद के लिए पुकारें तो क्या तुम दोस्तों को पीठ दिखाओगे? मैं कुछ भी नहीं भूला। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम तुम भूल गए हो कि कबीला कुरैश का सरदार कौन है। मैं हूँ तुम्हारा सरदार। मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी और का साथ नहीं दे सकते। अबू सुफियान, अक्रिमा ने कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूँ। तुम्हारी कमान में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तुम्हारा हर हुक्म माना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम कबीले के वकार को मजरूह करते चले जा रहे हो। तुमने अपने दिल पर मदीना वालों का खौफ तारी कर लिया है। अगर मैं कबीले का सरदार हूँ तो मैं किसी को ऐसा जुर्म बख्शूंगा नहीं जो तुमने किया है। अबू सुफियान ने कहा। अबू सुफियान, अक्रिमा ने कहा, वो वक्त तुम्हें याद होगा जब खालिद मदीना को रुखसत हुआ था। तुमने उसे भी धमकी दी थी और मैंने तुम्हें कहा था कि हर किसी को हक हासिल है कि वो उस अकीदे का पैरोकार हो जाए जिसे वो अच्छा समझता है। और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुमने अपना रवैया न बदला तो मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करने पर मजबूर हो जाऊंगा। क्या तुम नहीं समझते कि बावकार लोग अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं किया करते? अबू सुफियान ने कहा, तुमने बनु बकर का साथ देकर और मुसलमानों के इत्तेहादी कबीले पर हमला करके अपने कबीले का वकार तबाह कर दिया है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमला कर दिया तो तुम हमला पसपा कर दोगे तो तुम खुशफहमी में मुब्तला हो। कौन से मैदान में तुमने मुसलमानों को शिकस्त दी है? कितना लश्कर लेकर तुमने मदीना को मुहासरे में लिया था? वहां से पसपाई का हुक्म तुमने दिया था। सफवान ने कहा, तुमने हार मान ली थी। मैं तुम जैसे जिद्दी और कोताहबीन आदमियों के पीछे पूरे कबीले को जलीलो ख्वार नहीं कराऊंगा। अबू सुफियान ने कहा, मैं मुसलमानों के साथ अभी छेड़खानी नहीं कर सकता। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त कबीले ने मुसलमानों के एक दोस्त कबीले पर हमला किया है और उसमें कुरैश के चंद एक आदमी शामिल हो गए थे। तो इससे ये मतलब न लिया जाए कि मैंने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा कि कबीला कुरैश हुदैबिया के मुआहिदे पर कायम है। वो अक्रिमा और सफवान को वहीं खड़ा छोड़कर वहां से चला गया। अबू सुफियान उसी रोज मदीना को रवाना हो गया। अहले मक्का हैरान थे कि अबू सुफियान अपने दुश्मन के पास चला गया है। उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। उसकी बीवी हिंद फुनकारती फिर रही थी। मदीना पहुंचकर अबू सुफियान ने जिस दरवाजे पर दस्तक दी वो उसकी अपनी बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। दरवाजा खुला। बेटी ने अपने बाप को देखा तो बेटी के चेहरे पर मुसरत की बजाय बेरुखी का तासुर था। बेटी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और बाप इस्लाम का दुश्मन था। क्या बाप अपनी बेटी के घर दाखिल नहीं हो सकता? अबू सुफियान ने उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, अगर बाप वो सच्चा मजहब कबूल कर ले जो उसकी बेटी ने कबूल किया है तो बेटी बाप की राह में आंखें बिछाएगी। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा। बेटी अबू सुफियान ने कहा, मैं परेशानी के आलम में आया हूँ, मैं दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, बेटी क्या कर सकती है? आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। बेटी की इस बेरुखी पर अबू सुफियान सटपटा उठा। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने वो शिनासा चेहरे देखे जो कभी अहले कुरैश कहलाते थे और उसे अपना सरदार मानते थे, अब उससे बेगाने हो गए थे। वो उसे चुपचाप देख रहे थे। वो उनका दुश्मन था। उसने उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थीं।
ओहद की जंग में अबू सुफियान की बीवी हिंद ने मुसलमानों की लाशों के पेट चाक किए और उनके कान और नाकें काट कर उनका हार बनाया और अपने गले में डाला। अबू सुफियान अहले मदीना की घूरती हुई नजरों से गुजरता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफा किया, लेकिन आपकी बेरुखी नुमाया थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल चुकी थी कि बनु बकर ने अहले कुरैश की मदद से खिजा पर हमला किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले कुरैश को फरेबकार समझ रहे थे। ऐसे दुश्मन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही इलाज था कि फौज कशी करो ताकि वो ये न समझे कि हम कमजोर हैं। अबू सुफियान ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये गलत फहमी रफा करने आया हूँ कि मैंने हुदैबिया के सुलहनामे की खिलाफ वर्जी की है। अगर बनु बकर की मदद को कबीला कुरैश के चंद आदमी मेरी इजाजत के बगैर चले गए थे तो ये मेरा कसूर नहीं, मैंने मुआहिदा नहीं तोड़ा। अगर तुम चाहते हो तो मैं मुआहिदे की तजदीद के लिए तैयार हूँ। मौरखीन इब्न हशाम और मगाजी की तहरीरों से पता मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न उसकी तरफ देखा न उससे कोई बात की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी ने अबू सुफियान पर खौफ तारी कर दिया। वो वहां से उठा और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिला। अबू सुफियान ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। तुम हम में से हो अबू बकर, खुदा की कसम हम घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते कि उसकी बात भी न सुने। मैं दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के रसूल हैं तुम्हारी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम उस मेहमान की बात सुना करते हैं जो हमारी बात सुनता है। अबू सुफियान, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या तुमने अल्लाह के रसूल की ये बात नहीं सुनी थी कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं? सुनी थी तो तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन क्यों हो गए? क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे अबू बकर? अबू सुफियान ने इल्तिजा की। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, हम अपने रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। अबू सुफियान मायूसी के आलम में सर झुकाए हुए चला गया और किसी से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर पूछकर उनके सामने जा बैठा। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को मदीना में देखकर मुझे हैरत हुई है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम तुम इस्लाम कबूल करने वालों में से नहीं। अबू सुफियान ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में आने का मकसद बताया और ये भी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बात तक नहीं की और अबू बकर ने भी उसकी मदद नहीं की। मेरे पास अगर चूंटियों जैसी कमजोर फौज भी हो तो भी तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम मेरे नहीं मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे मजहब के दुश्मन हो। मेरा रवैया वही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अबू सुफियान फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिला, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला, लेकिन किसी ने भी उसकी बात न सुनी। वो मायूस और नामुराद मदीना से निकला। उसके घोड़े की चाल अब वो न थी जो मदीना की तरफ आते वक्त थी। घोड़े का भी जैसे सर झुका हुआ था। वो मक्का को जा रहा था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जाने के बाद इन अल्फाज में हुक्म दिया कि मक्का पर हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में फौज तैयार की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में खास तौर पर शामिल था कि जंगी तैयारी इतनी बड़े पैमाने पर हो कि मक्का वालों को फैसला कुन शिकस्त देकर कुरैश को हमेशा के लिए तहओतेग कर लिया जाए। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कूच बहुत तेज होगा और उसे ऐसा खुफिया रखा जाएगा कि मक्का वालों को बेखबरी में दबोच लिया जाए या मक्का के करीब इतनी तेजी से पहुंचा जाए कि कुरैश को मोहलत न मिल सकी कि वो अपने इत्तेहादी कबाइल को मदद के लिए बुला सकें। मदीना में मुसलमानों ने रातों को भी सोना छोड़ दिया। जिधर देखो तीर तैयार हो रहे थे। तीरों से भरी हुई तरकशों के अंबार लगते जा रहे थे। बर्छियां बन रही थीं, घोड़े और ऊंट तैयार हो रहे थे, तलवारें तेज हो रही थीं। औरतें और बच्चे भी जंगी तैयारियों में मसरूफ थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। मदीना में एक घर था जिसके अंदर कोई और ही सरगर्मी थी। वो गैर मुस्लिम घराना था। वहाँ एक अजनबी आया बैठा था। घर में एक बूढ़ा था, एक उधेड़ उम्र आदमी, एक जवान लड़की, एक उधेड़ उम्र औरत और 2-3 बच्चे थे। मैं मुसलमानों के इरादे देख आया हूँ।
अजनबी ने कहा, उनका इरादा है कि मक्का वालों को बेखबरी में डालें। बिला शक व शुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी चालों के माहिर हैं। उन्होंने जो कहा है वो करके दिखा देंगे। हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े ने कहा। हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े ने पूछा। मेरे बुजुर्ग, अजनबी ने कहा, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मक्का वालों को खबरदार कर सकते हैं कि तैयार रहो और इधर उधर के कबीलों को अपने साथ मिला लो और मक्का के रास्ते में कहीं घात लगाकर मुसलमानों पर टूट पड़ो। मक्का पहुंचने तक उन पर शब खून मारते रहो। मुसलमान जब मक्का पहुंचेंगे तो उनका दम खम टूट चुका होगा। कसम उसकी जिसे मैं पूछता हूँ। बूढ़े ने जोशीली आवाज में कहा, तुम अक्ल वाले हो, तुम खुदाई यहूदा के सच्चे पुजारी हो। खुदाई यहूदा ने तुम्हें अक्ल दानिश अता की है, क्या तुम मक्का नहीं जा सकते? अजनबी ने कहा, नहीं। मुसलमान हर गैर मुस्लिम को शक की निगाह से देख रहे हैं। ये जानते हैं कि मैं यहूदी हूँ, वो मुझ पर शक करेंगे। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मुझे उन यहूदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें मुसलमानों ने कत्ल किया था। मेरी रगों में बनु कुरैजा का खून दौड़ रहा है। ये मेरा फर्ज है कि मैं मुसलमानों को ज़रबे लगाता रहूं और मैं अपना ये फर्ज अदा न करूं तो खुदाए यहूदा मुझे उस कुत्ते की मौत मारे जिसके जिस्म पर खारिश और फोड़े होते हैं और वो तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं मुसलमानों को डंक मारने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हूँ। बूढ़े ने कहा, मक्का दूर है, घोड़े या ऊंट पर इतना तेज सफर नहीं कर सकूंगा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंच जाऊं। ये काम बच्चों और औरतों का भी नहीं। मेरा बेटा है मगर बीमार है। इस इनाम को देखो जो हम तुम्हें दे रहे हैं। अजनबी यहूदी ने कहा, ये काम कर दो। इनाम के अलावा हम तुम्हें अपने मजहब में शामिल करके अपनी हिफाजत में ले लेंगे। क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? उधेड़ उम्र औरत ने कहा, तुमने मेरी ऊंटनी नहीं देखी, तुमने मुझे ऊंटनी की पीठ पर कभी नहीं देखा। इतनी तेज ऊंटनी मदीना में किसी के पास नहीं है। हाँ, यहूदी ने कहा, तुम ये काम कर सकती हो। ऊंटों और बकरियों को बाहर ले जाओ, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तुम उन्हें चराने के लिए हर रोज ले जाती हो, आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊंटनी पर सवार हो जाओ। उसने एक कागज एक औरत को देते हुए कहा, इसे अपने सर के बालों में छुपा लो। ऊंटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ और बालों में से ये कागज निकाल कर उसे दो। औरत ने कागज लेते हुए कहा, मेरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और इस यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो उनकी तादाद आधी भी न होगी। उनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त उनके चेहरों पर लिखी हुई होगी। यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, ये उस इनाम का निस्फ हिस्सा है जो हम तुम्हें उस वक्त देंगे जब तुम ये पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैंने काम कर दिया और जिंदा वापस न आ सकी तो बाकी इनाम तुम्हारे बीमार खामद को मिलेगा। यहूदी ने कहा। ये औरत अपने ऊंट और बकरियां चराने के लिए गई। उन्हें वो हाँकती जा रही थी। किसी ने भी न देखा कि ऊंटों की पीठें नंगी थीं, लेकिन एक ऊंटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। उसके साथ पानी का मशकीजा और एक थैला भी बंधा हुआ था। औरत उस रेवड़ को शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने उस जवान लड़की को जो घर में थी कहा, वो जा चुकी होगी, तुम जाओ और ऊंटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की हाथ में गडरियों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई। वो इस तरह इधर उधर देखती जा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजरी और एक मैदान में जा रुकी। वहाँ बहुत से मुसलमान ढालें और तलवारें लिए तेगजनी की मशक कर रहे थे। एक तरफ शुतर दौड़ हो रही थी और तमाशाइयों का भी हुजूम था। लड़की उस हुजूम के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये किसी को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे जो बढ़ते जा रहे थे। उसके कदम तेजी से उठने लगे। एक जवान साल आदमी ने उसे देख लिया और बड़ी तेज चलता उसके पीछे गया। करीब पहुंचकर उसने धीमी आवाज से कहा, जारिया। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और उसके चेहरे से परेशानी का तासुर उड़ गया। जारिया ने कहा, वहीं आ जाओ, और वो दूसरी तरफ चली गई। जारिया को वहां पहुंचते खासा वक्त लग गया जहां वो औरत ऊंटों और बकरियों को ले जाया करती थी। ऊंट और बकरियां वहीं थीं, वो औरत और उसकी ऊंटनी वहां नहीं थे। जारिया वहां इस अंदाज से बैठ गई जैसे बकरियां चराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। उसे अपनी तरफ कोई आता नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर परेशान हो गई। सूरज डूबने के लिए उफक की तरफ जा रहा था जब वो आता दिखाई दिया। जारिया ने सुकून की आह भरी और बैठ गई। ओह उबैद, जारिया ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं परेशान हो रही हूँ। क्या तुमने मुझे परेशानी का इलाज नहीं बताया? उबैद ने कहा, मेरे मजहब में आ जाओ और तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करती मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता।
जारिया ने कहा, ये बातें फिर कर लेंगे, लेकिन आज मेरे दिल पर बड़ा बोझ आन पड़ा है। कैसा बोझ? मुसलमान मक्का पर हमला करने जा रहे हैं। जारिया ने कहा, तुम न जाओ उबैद, तुम्हें अपने मजहब की कसम है कि न जाना। मक्का वालों में इतनी जान नहीं रही कि वो हमारे मुकाबले में जम सकें। उबैद ने कहा, लेकिन जारिया, उनमें जान हो न हो, मुझे अगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग में कूद जाने का हुक्म देंगे तो मैं अल्लाह के रसूल का हुक्म मानूंगा। दिल पर बोझ न डालो जारिया, हमारा हमला ऐसा होगा कि उन्हें उस वक्त हमारी खबर होगी जब हमारी तलवारें उनके सरों पर चमक रही होगी। ऐसा नहीं होगा उबैद, ऐसा नहीं होगा। वो घात में बैठे होंगे। आज रात के पिछले पहर या कल सुबह अबू सुफियान को पैगाम मिल जाएगा कि मुसलमान तुम्हें बेखबरी में दबोचने के लिए आ रहे हैं। तुम न जाना उबैद, कुरैश और उनके दोस्त कबीले तैयार होंगे। उबैद ने बिदक कर पूछा, क्या कह रही हो जारिया? अबू सुफियान को किसने पैगाम भेजा है? एक यहूदी ने, जारिया ने कहा, और पैगाम मेरे बड़े भाई की बीवी लेकर गई है। मेरी मोहब्बत का अंदाजा करो उबैद, मैंने तुम्हें वो राज दे दिया है जो मुझे नहीं देना चाहिए था। ये सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम किसी बहाने रुक जाओ। कुरैश और दूसरे कबीले मुसलमानों का कश्तो खून करेंगे कि कोई किस्मत वाला मुसलमान जिंदा वापस आएगा। उबैद ने उससे पूछ लिया कि उसके भाई की बीवी किस तरह और किस वक्त रवाना हुई है। उबैद उठ खड़ा हुआ और जारिया जैसी हसीन और नौजवान लड़की और उसकी वालिहाना मोहब्बत को नजरअंदाज करके शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे जारिया की आवाजें सुनाई देती रहीं, रुक जाओ उबैद, और उबैद जारिया की नजरों से ओझल हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तफसील से बताया गया कि एक औरत बड़ी तेज रफ्तार ऊंटनी पर अबू सुफियान के नाम पैगाम अपने बालों में छुपा कर ले गई है। उसे अभी रास्ते में होना चाहिए था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो को बुलाकर उस औरत की और उसकी ऊंटनी की निशानियां बताईं और उन्हें उस औरत के रास्ते में पकड़ने को भेज दिया। हजरत अली और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो के घोड़े अरबी नस्ल के थे और उन्होंने उसी वक्त घोड़े तैयार किए और एड़े लगा दी। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। दोनों शहसवार मदीना से दूर निकल गए। सूरज गुरूब हो गया।